Hello students, very good morning to all of you. Welcome to your online LFS class. So students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, our today's topic is generation of computer. But before starting this topic, we recall the things which we had discussed in our previous video. So let's start now. So in our previous video, we had discussed about some devices in which firstly we discussed about the abacus. So abacus was the first calculating device which was developed in China in 2600 BC. After that, John Napier was developed their device Napier-Bohr, and it can do complex calculation where abacus is doing only simple calculation, but with the help of Napier-Bohr we can do complex calculation. After that, Pascal was developed their device Pascaline calculator. It was also doing complex calculation, but within a large amount. It means Pascaline calculator जो डेवलप हुई वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकती थी, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो वो उनको भी इजीली कर सकता था. And after that, difference engine was developed by Charles Babbage, who is known as father of computer. So, in 1822. After 10 years, Charles Babbage was developed the analytical engine, and because of the device he was made, so he is known as a father of computer. Clear? Okay. He was known as a father of computer because in analytical engine it has a input device, output device as well as storage device as modern computer has. जो भी मॉडर्न कंप्यूटर के पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, और ये सब एनालिटिकल इंजन में पॉसिबल थे, वो सब थे. So after that we will discuss about the generation of computer. So generation of computer, the computer that we use today is the outcome of the development of different generation of computer devices. And when as generation passes, in resultant we get in size smaller, cheaper and more powerful computer. We get in smaller size, in cheaper means सस्ते, और साइज में काफ़ी स्मॉल. जैसे जैसे जनरेशन पास होती गई हमें साइज में स्मॉल, सस्ते और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर मिले इन जनरेशन्स के थ्रू, जैसे जैसे जनरेशन बीतने लगी. So first generation computers. So in our first generation computer, that first generation computer, vacuum tube was used as a circuit. In first generation computer, vacuum tubes are used as a circuit, and also magnetic drums are used. Memory. Clear? So students, in memory means ये नहीं था कि फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस पॉसिबल हो गए थे. मेमोरी मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते थे और उस समय का जो वर्क रहता था वो उस टाइम जब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता था वो मेमोरी में सेव रहता था. सो मेमोरी मीन्स अभी ये बिल्कुल नहीं है कि ये डाटा स्टोर करने लगी थी, ऐसा कुछ भी नहीं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी केवल जब तक सिस्टम ऑन रहता था तब तक की वो चीज़ों को सेव करता था. और वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड of their circuits, and magnetic drums are used as a memory, and it also consume large amount of इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे. एंड ये हर किसी को फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे बेटा वो हर कोई चलाने में पॉसिबल नहीं होता था,
बिकॉज इट कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीनी लैंग्वेज। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझते थे। क्लियर? और ENIAC and UNIVAC are the example of the first generation computer. ENIAC and UNIVAC are the first example of first generation computer. So now after that second generation was come. So in second generation beta vacuum tubes were replaced. In second generation computer vacuum tubes were replaced by the transistors. In second generation vacuum tubes were replaced by the transistor, and it's also used as a memory with magnetic drums with magnetic core. As a memory मैग्नेटिक ड्रम्स तो आपके फर्स्ट जनरेशन में थे, बट मैग्नेटिक ड्रम्स के साथ मैग्नेटिक कोर्स भी यूज होने लगे एज अ मेमोरी, और वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गए ट्रांजिस्टर से। क्लियर? and it was the first generation computer which stored some data. In second generation in first generation we use memory till the computer is off. जब तक कंप्यूटर ऑफ होता था हम उस मेमोरी को यूज़ करते थे, बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर भी करने लगे। IBM 1401 and NCR 304 are the example of IBM and NCR 304 are the example of second generation computer. Clear? After that third generation comes. So students, in third generations the transistor were removed by in third generation computer the transistor were removed by the integrated circuit. Clear? And in this generation the operating system was used. Operating system means the system operating system or those software. Sorry, operating system is a basic system software. ये एक basic system software होता है जो कि हम सारे कंप्यूटर्स में पहले से ही इंस्टॉल होता है। every computer it has also installed in things. So in third generation computers, keyboards and monitors are used and supported high level language and were capable of running several programs at the same time. It means in third generation computer, keyboard and monitor was used and also it has some storage devices and it was capable for running several programs at the same time. It means ये एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम को करने में पॉसिबल होने लगा। PDP-A and also become accessible to common man owing to much reduced size and cost. It means ये common man के अंडर में आने लगा क्योंकि ये चीप होने लगा और ये साइज़ में काफ़ी छोटा हो गया। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से ये साइजेस में काफ़ी छोटा हो गया, तो जिससे ये कॉमन मैन भी इसको यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि ये साइज़ में भी छोटा हो गया और ये जो है आपकी मशीनी लैंग्वेज को असेंबली में कन्वर्ट करता था, तो ये कॉमन मैन की लैंग्वेज को समझने लगा। कॉमन मैन की लैंग्वेज को ये नहीं समझा, कॉमन मैन इसके थ्रू दिए गए इंस्ट्रक्शन को या इसके थ्रू दिए गए आउटपुट को समझने लगा। ये कॉमन मैन के थ्रू दिए गए डायरेक्टली
जो हम लोग अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते थे उसको कंप्यूटर समझने लगा और उसको कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में हमें आउटपुट देके इस तरीके से कॉमन मैन के अंडर में आ गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर uses microprocessor. It was replaced to the integrated circuit. It has 1000 integrated circuit. जहाँ आपको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ एक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा था और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारी इंटीग्रेटेड, इट मीन्स 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी एक सिंगल चिप में। ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगा एंड इट कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेज, और इसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने लगे। एंड हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में कैपेसिटी होने लगी जिससे हम लार्ज अमाउंट में अपना डाटा स्टोर करने लगे। कैन बी कैरी फ्रॉम वन पेज टू अनदर ईजली, और इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ईजिली ले जा सकते हैं। और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है, इस समय आपने लैपटॉप्स यूज़ करते हैं ना आप लोग, लैपटॉप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, इवन जो आपने अपने हैंड में ये जो फ़ोन लिया है ये भी आपका क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। क्लियर? सो एंड जो आप स्कूल में भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो भी आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आपका बेस्ड है आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इट इनेबल्स टू कंप्यूटर टू थिंक, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या इंटेलिजेंट हैं क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं, हम उस बात को सीख सकते हैं, किसी चीज़ को हम उस बात को समझ सकते हैं। तो जो अब फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए उनमें ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हो कि कंप्यूटर खुद से थिंक करे, खुद से उस सिचुएशन को हैंडल करने में पॉसिबल हो सके। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डेवलप किया गया। और रोबोट्स, स्मार्ट किचन, स्मार्ट कार में क्या होता है, आप बस उसमें बटन दबा दीजिए तो उसके बाद क्या होता है, वो कार अपने आप ही ड्राइव होती है, उसको कहाँ टर्न करना है, कहाँ पे उसको क्या करना है, उसमें वो सब इजीली हैंडल कर लेती है। स्मार्ट किचन, स्मार्ट रोबोट क्या होता है, वो अपने आप थिंक कर सकता है ना कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ सही है, ये चीज़ करनी है। इट मीन्स उसमें ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो चीज़ों को समझ के उसके बाद ही उनको करे और हमारा आंसर हमें दे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की वजह से ही हम जो है अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है, वेदर की रिपोर्ट कैसी है, ये सब जान पाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ। लेट्स सी इन वन। In first generation computers, vacuum tube was used. It consumed large amount of electricity and also reduce the large amount heats. And it can only understand the machine language. सो ये कॉमन पर्पस यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि सब वो लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते थे। इन सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्रांजिस्टर। क्लियर? एंड ऑल्सो in second generation computer it was developed some storage device that stores the instruction of the
इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस. इट मीन्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये कुछ डेटा को स्टोर कर सकता था जो कि हमारे द्वारा जिसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन होते थे. In third generation computer, transistor was removed by integrated circuit. The transistor was removed by integrated circuit. And in third generation computer, operating system was used. What is operating system? It is basic system software from which we can manage and control. We can manage our things. We can manage our file and folder. In fourth generation computer, the microprocessor was used. इंटीग्रेटेड सर्किट को रिमूव नहीं किया गया, उसमें माइक्रोप्रोसेसर को ऐड किया गया. और इसमें एक चिप में 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट को ऐड करके उसमें यूज किया गया. क्लियर? एंड यस, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को ही हम यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब. एंड इन लास्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. In fifth generation computer, this generation computer are based on artificial intelligence. AI. It means artificial intelligence. Clear? And the example of fifth generation computer are robot, smart car, smart kitchen, and so on. And in future we will touch to the fifth generation. हम फ्यूचर में फिफ्थ जनरेशन के ही टच में रहेंगे, क्योंकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत हद तक डेवलप कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हमें वेदर की नॉलेज मिलती है कि कब कहाँ बाढ़ आ रही है, कब कहाँ सूखा हो रहा है, और इसकी वजह से हमें अर्थक्वेक का पता चलता है, जिससे कि कई लोगों की जानें बच सकती हैं. हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम बचा सकते हैं. मतलब उस तरीके से हम उसका वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे कि जिससे अर्थक्वेक आने पे या बाढ़ आने पे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? So students, this is it for today. Tomorrow we will start our new chapter. And this time for your homework, so write your homework. Your homework is do book exercise A and B of chapter 1. चैप्टर 1 की आपको एक्सरसाइज ए एंड बी होमवर्क कॉपी में करना है. एंड वन मोर थिंग आई मस्ट टेल यू बेटा, डू द होमवर्क डेली एंड send it to my WhatsApp. So thank you students, have a nice day, goodbye.